Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 21st January 2022. I am sure children you all are keeping in good health, taking very good care of yourselves. Do keep on following all the safety precautions, do keep on following all the COVID protocols and stay happy, healthy and safe children. And at the same time, I hope and I believe that you have started preparing for your evaluation 3 exams also, which are going to be held sometime in February only. So children, you still have time. अभी भी आपके पास time है, अपना preparation आप start कर दो, so that by the exam, जब तक exam आपके start होते हैं, by the time the exam starts, you are well prepared. And remember children one thing, आपके एग्ज़ाम्स के बीच में गैप नहीं मिलता है नॉर्मली. तो अगर आपकी प्रिपरेशन होगी, आपने पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, तो यू विल गेट टाइम टू रिवाइज. बट अगर कुछ भी नहीं प्रिपरेशन किया, कुछ भी नहीं लर्न किया, देन यू विल डेफिनेटली हैव प्रॉब्लम्स. सो चिल्ड्रन प्लीज प्रिपेयर वेल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ. ओके, so as you can see on the board, today we are going to start unit number 14 in grammar, and the name of the unit is in, on, under and behind. Now children, you must be wondering, in, on, under, behind ये कैसा नाम है? ये तो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है ना. in, comma, on, comma, under, comma, behind, comma. So yes children, these are words and these are some special words. Special in the sense that they are used to tell the position of any person, any place or anything. ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं in, on, under, behind, these are the words which are used to tell the place or position of something, any person, any place, anything. ठीक है, so these words are known as position words. So the learning objective of this unit is children will learn the use of some common prepositions. These words are known as position words and in grammar they are known as prepositions. जैसे नेमिंग वर्ड्स को ग्रामर में नाउन्स कहते हैं, प्रोनाउंस आर देयर, देन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स, एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स. ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स भी हमने पढ़ा, ज्वाइनिंग वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स दे आर नोन एज कंजंक्शंस. सो दीज वर्ड्स आर नोन एज प्रीपोजिशंस. ठीक है, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड दे टेल अस द place or position of any person, any place, any animal, any bird, anything. किसी भी चीज़ की, किसी भी नेमिंग वर्ड की पोजीशन बताते हैं, प्लेस बताते हैं. So these words are known as prepositions. So today in this unit we are going to learn the use of these prepositions. Okay, these are not the only ones, there are a lot of prepositions. If you remember, हमने जो lesson number 7 पढ़ा था in our main course book, A Fun Weekend, उसमें भी हमने बहुत सारे prepositions के बारे में पढ़ा था. अमन hid inside the doll house, leaving the dolls outside. Adit hid behind the tree. Aman's hid under the bench. Nitin stood at the corner. Priya and Mona climbed up the tree. तो ये climbed up, at, under, behind, all these are prepositions. इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा कि streamers, balloons and masks were hanging from the tree. तो from, at, between, climbed up, climbed down, along with, there are a lot of other prepositions also. These are some of the very commonly used ones. ये कुछ एक है preposition जो बहुत common जिनका use है. तो आज हम इन prepositions के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में. So turn to page number 52 in your grammar book. ठीक है, Superb English Grammar, page number is 52. Okay, now look at the pictures and read these sentences. Now in, on, under, behind, etc. are prepositions and they tell us where a person, place, animal or thing is. कहाँ पे कोई person, place, animal या कोई भी चीज़, उसकी पोजीशन कहाँ पे है. ठीक है,
So look at the picture and read these sentences. Since we are going to talk about only these 4 prepositions, तो इसीलिए जो और भी preposition जो है at है, behind, between है, from है, along with, ये सारे की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ. Okay, we will talk about these 4 at the moment. Now look at the picture. ये pictures दिख रही है ना, ठीक है. A rat is in the box. Rat कहाँ पे है? You can see that the rat is sitting inside the box. Second picture में आप देखोगे a rat is on the box. कहाँ है? First picture में rat box के अंदर है, in the box. Second picture में rat is on the box. Box के ऊपर है, ठीक है. A rat is under the table. कहाँ है? Table के नीचे है. Under मतलब नीचे. And rat is behind the box. Behind मतलब पीछे. And children, if you remember, maths में हमने पढ़ा था प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2. उसमें भी हमने बहुत सारे प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ा. इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, टॉप, बॉटम. ये हमें क्या बता रहे हैं? दे टेल अस द पोजीशन ऑफ समथिंग. द लायन इज इनसाइड द केज, द मैन इज आउटसाइड द केज, है ना. द मैन इज इनसाइड द टेंट, हिज कैमल इज टाइड आउटसाइड द टेंट. Things flying above, things which are under the roof. तो above, below, under, these are all prepositions. ठीक है. Now let us see the use of in. In का मतलब है अंदर. कोई भी चीज़ जैसे अंदर है. I keep my bag, I keep my books in my bag. The clothes are in the cupboard. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो water in glass. Pour some water in the glass. ठीक है. Pour some milk in the cup. कहाँ पे डाल दो मिल्क? कप में. ग्लास का पानी कहाँ डालना है? ग्लास में डालना है. तो वाटर इन द ग्लास, फ्लावर्स इन वाज, फ्रूट्स इन बास्केट, फिश इन एक्वेरियम. ठीक है. फिश कहाँ पर है? एक्वेरियम में है. ओके. सो दिस इज द यूज ऑफ इन. नाउ चिल्ड्रन, इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था लेसन नंबर 7 में भी एंड मैथ्स में भी, इनसाइड एंड आउटसाइड. इनसाइड जैसे होता है, इनसाइड इज किसी चीज़ के बिल्कुल अंदर. ठीक है. इनसाइड हम जब बात करते हैं जब वो चारों तरफ से कोई चीज़ कवर्ड है. ठीक है. इनसाइड द पूल, इनसाइड द रिवर, इनसाइड द पॉन्ड, ओके, इनसाइड द केज. तो हम इनसाइड यूज़ करते हैं. इनसाइड का मतलब भी अंदर है, इन माने भी अंदर है. ठीक है. द चाइल्ड वेंट इन द रूम. ठीक है. और इनसाइड मतलब बिल्कुल अंदर. नाउ एक और डिफरेंस है इनसाइड एंड इन में कि इनसाइड इज यूज ओनली टू टेल द लोकेशन. ठीक है. और इन जो है, इन हम लोकेशन बताने के लिए भी यूज करते हैं एंड एट द सेम टाइम वी यूज इन फॉर टाइम पीरियड ऑल्सो. लाइक आई वॉज बॉर्न इन 2015. माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. ओके. आई कंप्लीट द वर्क इन एन आवर. मतलब मैं 1 घंटे में अपना काम कर लूँगा. मैं 2015 में पैदा हुआ, मेरी बर्थडे फरवरी में आती है. तो यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो इन इज यूज्ड फॉर टेलिंग द लोकेशन. किसी चीज़ की जगह बताने के लिए भी इन यूज़ करते हैं और कोई टाइम पीरियड के लिए भी इन यूज़ करते हैं. वेयरएज इनसाइड इज यूज ओनली टू टेल द लोकेशन ऑफ समथिंग. ओके. सो इनसाइड एंड इन का दोनों का मतलब है अंदर. नाउ यूज ऑफ ऑन. ऑन हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऑन मतलब ऊपर. ठीक है. तो ग्लास ऑन टेबल. द ग्लास इज केप्ट ऑन द टेबल. मंकी ऑन अ ट्री. ठीक है. देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री. देयर आर मंकीज ऑन द ट्री. ओके. देन अ कैट ऑन द मैट. कैट कहाँ पे है? कैट ऑन द मैट. कैट जो है वो मैट के ऊपर बैठी है. बुक्स ऑन अ शेल्फ. कहाँ है बुक्स? ऑन अ शेल्फ. शेल्फ के ऊपर है. शेल्फ मतलब जो अलमारी में शेल्फ जो खाने होते हैं उसको कहते हैं शेल्फ. ठीक है. अंडर. अंडर मतलब नीचे. अ डॉग अंडर द बेड. A cow under a tree. I keep my shoes under the shelf, or I keep my shoes under the bed, or I keep my shoes under the almirah. I keep the dustbin under the table. ठीक है. अंडर मतलब नीचे. ऑन माने ऊपर, अंडर माने नीचे. देन बिहाइंड. बिहाइंड मतलब पीछे. सो अ कैट बिहाइंड द कर्टन. वेयर इज द कैट? द कैट इज बिहाइंड द कर्टन. अ मैन बिहाइंड द वॉल. Where is the man? The man is behind the wall. Wall के पीछे है. तो behind that is पीछे. The child hid behind the tree.
द चाइल्ड हेड बिहाइंड द कर्टन, ठीक है. द कैट सैट बिहाइंड द वॉल. सो बिहाइंड माने पीछे. So in this lesson children we are talking about only about in, on, under and behind. Only these 4 prepositions. इस lesson में हम और दूसरे prepositions की बात नहीं कर रहे हैं. Okay? Now turn the page, page number 54. We will start with the exercises now. I hope this is clear to everyone. सबको in, on, under and behind का use समझ में आ गया. These are known as position words because they are used to tell the place or position or location of something. ठीक है. So they are known as position words. Grammar में इनको prepositions कहते हैं. जैसे where in which city do you live? I live in वाराणसी. कहाँ पे? वाराणसी में. And where is वाराणसी? वाराणसी is in उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पे देखो in का मतलब वहाँ पर है. ठीक है. यहाँ पे टाइम हमें प्लेस भी पता चल रहा है. हिंदी में जैसे आप बोलते हो कमरे में गया और अंदर, ठीक है ना. तो आप ऐसे समझ सकते हो डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनसाइड में. जहाँ पे हम में यूज करते, ग्लास में थोड़ा पानी डाल दो, कप में चाय दे दो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इन. और जहां पे आप बोलते हो अंदर, ठीक है, एक्स फेल इनसाइड द वाटर, इनसाइड द रिवर, जहां पे हम अंदर यूज करते हैं कि पानी के अंदर गिर गई, पानी के अंदर गिर गई, हम इनसाइड बोलते हैं. वी ऑल्सो से पानी में गिर गई, हिज एक्स फेल इन द वाटर. ठीक है. सो इन एंड इनसाइड में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है. देख कैन मतलब इन की जगह हम इनसाइड भी यूज कर सकते हैं, इनसाइड की जगह हम इन भी यूज कर सकते हैं. बट जहां पे टाइम पीरियड अगर बताना है तो वहां पे ऐसा नहीं कि इन की जगह हमने इनसाइड यूज कर लिया. दे आर नॉट इंटरचेंजेबल. वाराणसी इज इन उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे इन ही होगा. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट इज राइट in, on, under, behind in the blanks. Write in, on, under, behind in the blanks. BLANKS. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट वन इज, अभी यहाँ पे आपको इसको फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज पिक्चर क्लू इज गिवन. यू हैव टू फिल यूजिंग द पिक्चर क्लूज. पिक्चर क्लू की हेल्प से भरना है. सो माई टॉयज आर डैश द टेबल. ठीक है. वेयर आर द टॉयज? यू कैन मेक आउट दैट द टॉयज आर केप्ट ऑन द टेबल. सो माई टॉयज आर ऑन द टेबल. सेकेंड क्या है? There are 2 pillows dash the bed. ठीक है. Where are the pillows? Pillows कहाँ रखी है? Pillows are on the bed. So there are 2 pillows on the bed. अगर फर्स्ट वाले सेंटेंस में my toys are dash the bed, अगर पिक्चर नहीं दी हुई है तो आप ऑन भी लिख सकते हो, अंडर भी लिख सकते हो. आप ये भी तो कह सकते हो ना कि my toys are under the table. ठीक है. बट यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, पिक्चर में टेबल के ऊपर टॉयज है, तो हम यहाँ पे ऑन ही लिखेंगे. इफ द पिक्चर क्लू इज नॉट देयर देन अंडर कैन ऑल्सो बी यूज. my toys are under the table. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस, नॉट द सेकेंड वन, क्योंकि पिलोज की पोजीशन, पिलोज हमेशा बेड पे ही तो रखते हैं हम. थर्ड इज देयर इज अ लाइन, देयर इज अ लाइन डैश द bushes. bushes मतलब झाड़ी. सो वेयर डू यू सी द लाइन? लाइन हमें कहाँ दिख रहा है? झाड़ी के पीछे. So there is a line behind, BEHIND. There is a line behind the bushes. Fourth is his shoes are dash the bed. Where do you see the shoes? इस पिक्चर में आपको शूज कहाँ दिख रहे हैं? शूज अंडर, बेड के नीचे दिख रहे हैं, तो ये शूज आर अंडर द बेड. ये तो पिक्चर क्लू है तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. बट अगर पिक्चर क्लू नहीं भी है तो भी आप आराम से वर्ड्स यूज कर सकते हो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट. ठीक है. एंड फिफ्थ इज I
keep my clothes dash the almirah. So where do we keep our clothes? हम कपड़े कहाँ रखते हैं? अलमीरा में रखते हैं. यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है? I keep my clothes in the almirah. Okay. So this you have to do in your book, children. So अभी आज का टाइम खत्म हो गया. Exercise 2 and 3 are still left. ठीक है? So that we will be doing in the next class. So that is all for the day, children. In case of any doubt, you can always ask me in the online class. So that is all for the day, children. Thank you and have a good day.